maximum and minimum values of maximum and minimum values of displacement, velocity and acceleration. Displacement, velocity and acceleration in SHM, in linear SHM, maximum and minimum values of displacement and velocity and acceleration in SHM. First of all, let me explain you displacement. I will first of all explain displacement. Now you are aware, equation of displacement is x is equal to a sin omega t plus alpha. X is equal to a sin omega t plus alpha. A being constant, the value depends upon sin omega t plus alpha. Sin omega t plus alpha. Now the minimum value of sin function, minimum value of sin omega t plus alpha is 0. Omega t plus alpha is 0, and therefore x minimum is equal to 0 when the particle is at mean position. X minimum is 0 because we refer displacement from the mean position. So x minimum is 0 at, I can say, mean position. At mean position x minimum is 0. This is what the minimum value of displacement. Now let me explain what is the maximum value of displacement. For maximum value of displacement, this sin omega t plus alpha should be maximum. For maximum displacement, sin omega t plus alpha must be maximum, and maximum value of sin omega t plus alpha is, for any sin function, maximum value is plus or minus 1. So you get x max is equal to plus or minus a. Now you will ask me, sir, how does it plus or minus? See, this is the mean position, these are two extreme positions. This is x is equal to a and this is x is equal to minus a. In between these two positions, the particle oscillate. So for the maximum extreme position, x is equal to a on one side, and on the other side it is x is equal to minus a. These are the minimum and maximum values of displacement. I hope you are getting this. ये आपको अब पता चल गया है कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब होती है और मैक्सिमम कब होती है. अब ये दोनों चीजें और उनके वैल्यूज कितना है ये अभी आप जान गए हो. अब आगे बढ़ते हैं बी. अब हम चलेंगे वेलोसिटी की तरफ. बी के बारे में हम बात करेंगे वेलोसिटी. अब मैंने कल आपको एसएचएम की वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था. v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है ये देखना है. तो मैं दो पोजीशंस आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन है. एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है. ठीक है. एट मीन पोजीशन x is 0. X is equal to 0 and you get v is equal to plus or minus omega under root a square minus 0, that is plus or minus a omega. Plus or minus a omega. You will ask me, sir, why it is plus or minus? See, this is the mean position. At one time it is going towards the extreme position, positive extremity. The velocity is plus a omega. While coming back, it passes to the same position and its velocity becomes minus a omega. That is why they are plus or minus a omega. These are the maximum. If you talk about magnitude, it is just a omega. So v max. Now you will ask me, sir, why are you taking this as maximum velocity? See, x is 0 at mean position, and जैसे जैसे आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हो, दोनों एक्सट्रीमिटी, x बढ़ते चलेगा, और x बढ़ते चलेगा तो a स्क्वायर में से वो माइनस होगा, मतलब रूट की वैल्यू कम होगी और वेलोसिटी
कम होते चलेगी, मतलब मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, और जैसे जैसे आप एक्सट्रीम पोजीशन पे की तरफ जा रहे हो तो आप देखिए एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, इस पोजीशन पे प्लस ए है, प्लस ए, और इस पोजीशन पे x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही आएगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस आएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो होगा। मतलब इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे पार्टिकल जाके रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब मिनिमम वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हो गई v मिनिमम इज जीरो, कहाँ पे है ये, तो ये आती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशंस पार्टिकल मोमेंटरीली रुक जाता है, यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ आते आते उसकी स्पीड बढ़ते चलती है, यहाँ मैक्सिमम होती है, यहाँ से फिर घटते चलती है, यहाँ जीरो होती है, फिर से वो दोबारा रिवर्स होता है, यहाँ से आते वो स्पीड बढ़ती है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ से आगे कम होती जाती है, इस तरीके से वो ऑसिलेट होता है। आपने झूला झूलते हुए देखा होगा, एकदम लास्ट एंड को वो थम जाता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जब वो बीच में आता है, सेंटर में आता है, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गई वेलोसिटी की बात, मैक्सिमम और मिनिमम, और बाकी तो पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, प्लस और माइनस ए ओमेगा और जीरो, इनके बीच में वो चेंज होगा। लास्ट आर्टिकल जो होगा इसमें वो है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के बारे में अब मैं बात करूंगा। एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपको मैंने बताया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर से दो पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। एट x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज मीन पोजीशन। अगर मैं मीन पोजीशन के बारे में सोचता हूँ तो x इज इक्वल टू जीरो है, तब एक्सेलरेशन जीरो आएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है ये तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। एक्चुअली ये मिनिमम है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर चले जाओगे एक्सट्रीम की तरफ तो x बढ़ते चलेगा और एक्सेलरेशन भी बढ़ते चलेगा। एट एक्सट्रीम पोजीशंस, at extreme positions x is equal to plus or minus a, x is equal to plus or minus a, इस साइड में प्लस a है, यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे at extreme positions एक्सेलरेशन होगा, एक तो प्लस a लोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a होगा, और माइनस a लोगे तो प्लस होगा, मतलब प्लस और माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर a होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। आप मुझे पूछोगे कि सर मैक्सिमम में क्यों आता है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी रिवर्सल होती है, तो पार्टिकल यहाँ आते आते थम गया था और यहाँ आके आके उसकी स्पीड तुरंत बदलना चालू होती है उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और उसकी वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये चीजें मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशंस के बारे में जानकारी दे चुका हूं मैं आपको यहाँ तक। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ आगे की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आपके साथ, और आज का लेक्चर यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। तो ये चीज मैं आपको बता दिया हूँ, तो अब आगे चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग सीखते हैं एसएचएम के बारे में, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनोलॉजी। एक है एम्पलीट्यूड, नंबर वन इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड बेसिक डेफिनेशन ऐसी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो साइन नहीं आएगा। तो आप देखिए पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट हो गया था, ये मीन पोजीशन है, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए आ गया और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो उसकी डिस्प्ले एम्पलीट्यूड होगी a, क्योंकि मुझे चाहिए केवल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो से एक तो इधर प्लस ए होगा
और इधर माइनस ए होगा, लेकिन दोनों तरफ से दोनों साइड का उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम है, तो x इज इक्वल टू a is the amplitude of SHM. The maximum displacement from the mean position is called amplitude, and x is equal to a is the amplitude. Amplitude is the distance between the mean position and extreme position. अब कुछ चीजें जान लो, एक ऑसिलेशन में पार्टिकल 2a डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्योंकि पाथ लेंथ देखिए 4a डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक ऑसिलेशन में, पाथ लेंथ तो 2a आती है, तो यहाँ से निकला तो यहाँ तक आते आते 2a हो गए, और फिर यहाँ से रिटर्न आ गया, तो 2a जाना और 2a आना, मतलब एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 4a डिस्टेंस कवर किया है एक ऑसिलेशन में। इट कवर इन वन ऑसिलेशन द पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू 4a। अगर किसी ने आपको एवरेज स्पीड पूछी तो वो कैसे करने का है, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑसिलेशन, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि जहां से निकला वही वापस आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन स्पीड एवरेज स्पीड उसकी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है मैं आपको बताऊंगा। तो एम्पलीट्यूड हो गई x इक्वल टू प्लस और माइनस a, और उसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो खाली a का है आपने। उसके बाद नंबर 2, अब मैं आपको बताऊंगा पीरियड। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, x इक्वल टू ओमेगा t प्लस अल्फा। अब यहां से कहीं से पार्टिकल स्टार्ट हो गया और ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से स्टार्ट हो गया था और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके फिर से दोबारा उसी जगह पे वापस आ गया। तो आपको बताया था मैंने कि SHM और UCM दोनों का पीरियड सेम है। तो अब यहाँ पे देखिए UCM का पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अब यहाँ से इतना टाइम बढ़ने के बाद वही डिस्प्लेसमेंट आती है क्या, हम लोग देखेंगे उसी पोजीशन पे फिर से आता है क्या। अगर x की वैल्यू सेम आ गई मतलब पार्टिकल फिर उसी जगह पे आ गया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके, और उसके लिए टाइम कितना चाहिए, t is equal to 2 pi upon omega. The time taken by the particle to complete one oscillation is called period of SHM. Time taken by the particle to complete one oscillation is called period of SHM. तो अब इसके आगे इतना टाइम बढ़ने के बाद क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो x is equal to a sin ओमेगा, t तो ऑलरेडी था और उसमें प्लस टाइम बढ़ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस अल्फा। तो अब देखिए ये कैसा होता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस अल्फा होता है। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री घूमने के बाद फिर हम उसी जगह पे आ जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से मुझे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा ही मिलता है। मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद पार्टिकल फिर उसी जगह पे आता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब स्प्रिंग क्लॉक ऑसिलेटर जो हमने जहां से स्टार्ट किया था उसके पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कैसे आ जाता है, और उसका हम लोग एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह उसका यूज करते हैं, तो वो आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको मैं वो एग्जांपल्स बता देता हूँ उसका क्या सिचुएशन है ये मैं बता देता हूँ। तो कल मैंने आपको स्प्रिंग क्लॉक ऑसिलेटर सिस्टम में K/m जो टर्म थी उसको मैंने नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर, K/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या है, तो रेफरेंस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है, जो पार्टिकल को हम रेफरेंस करके उसके साथ का प्रोजेक्शन लेके SHM बना रहे हैं। तो K/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, √k/m। और स्प्रिंग क्लॉक ऑसिलेटर का पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन √k/m, या t इज इक्वल टू 2 पाई √m/k। ये स्प्रिंग क्लॉक ऑसिलेटर के ऑसिलेशन का पीरियड का फॉर्मूला है। स्प्रिंग क्लॉक ऑसिलेटर सिस्टम जो होगी उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, स्प्रिंग सीरीज में होंगी, पैरेलल में होंगी, तो वो हिसाब से उसके क्वेश्चंस चेंज होते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी वैसे बदल जाते हैं, वो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे m/k क्या है या K/m क्या है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको रिस्टोरिंग फोर्स बताया था कल, F इज इक्वल टू kx, मैग्नीट्यूड के लिए F इज इक्वल टू kx। अगर मैं इसको m से डिवाइड करूं तो F/m इज इक्वल टू k/m इंटू x आएगा, F/m इज इक्वल टू k/m इंटू x आएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं
तो ये f अपॉन m मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अपॉन x इज इक्वल टू k बाय m आएगा। तो k बाय m इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, k बाय m इज एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो पीरियड के लिए फॉर्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट k बाय m मतलब मैंने क्या बताया इधर आपको a बाय x बताया, तो यहाँ पे लिखना है लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द expression for period of a spring block oscillator, linear acceleration per unit linear displacement। कोई भी पार्टिकल अगर लीनियर SHM कंप्लीट कर रहा है तो आप ये फॉर्मूले से उसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, और उससे आपको लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और इससे आप पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो। अब रही बात फ्रीक्वेंसी की। पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। Period is the time taken by the particle to complete one oscillation. Frequency is the number of oscillations performed per unit time. Number of oscillations performed per unit time. तो समझिए फ्रीक्वेंसी है f, तो f ऑसिलेशन के लिए 1 सेकंड या 1 यूनिट टाइम चाहिए। तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम आएगा 1 अपॉन f विच इज पीरियड। मतलब t इज इक्वल टू 1 बाय f होता है, या f इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आएगा f इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेना है मुझे, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई भी ले सकता हूं मैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई भी ले सकता हूं, या इसको मैं 1 अपॉन 2 पाई और इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट k बाय m भी ले सकता हूं। तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे मैंने आपको एम्पलीट्यूड, उसके बाद पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनके बारे में बता दिया है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। एम्पलीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द mean position, which is x is equal to a, x max is equal to a, which is the amplitude. Then period is the time taken by the particle performing SHM to complete one oscillation is called period. और period का basic formula t is equal to 2 pi by omega. और frequency is number of oscillations completed during unit time is called frequency, which is reciprocal of पीरियड। तो अब यहाँ पे हमारा काम ये फ्रीक्वेंसी और पीरियड का खत्म होता है, यहाँ पे हम लोग इसको रोकते हैं।